I never understood the concept of freelance communities. Like a lot of people ask me कि भाई you should have your own community, you should have opened up your own community, like you should open a WhatsApp community जहाँ पे we all can gather and we can share thoughts and do this and do that. Look, the only purpose कि एक कोई community बनाता है इंसान, that is simply to sell you stuff. That is simply to connect all the like-minded people at once and उसके बाद subtly उसको थोड़े टाइम तक चलाओ. Then down the line just come up and say कि hey I'm pitching this and this is happening. अब एक दो exceptional लोग हैं जिनके communities are like कि भाई they are very selfless, they do not care about the monetary aspect, they just do it for the people, they do it for the tribe, do it for the community, do it for the group. बहुत कम है. ज़्यादातर केसेस में यही होगा. एंड आई सी न्यूबीज फाइंडिंग आउट दिस थिंग वेरी फैंसी एंड दैट कि लाइक पता नहीं भाई क्या ही हो जाएगा. आई हैव बीन फ्रीलांसिंग फॉर ओवर 2600 डेज, 7 साल से ऊपर. आई डिडंट जॉइन अ सिंगल कम्युनिटी. इट इज़ पथेटिक. सो रिसेंटली वन ऑफ माई मेंटीज आई आस्क्ड हर कि भाई वाई आर यू इन 10+ व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये 10 चैटों का काम क्या है. एंड शी वेंट लाइक कि दिस इज the place where I got to know people, where I got to know that people are doing the same stuff that I am doing. I made my community, I made my circle here, I meet them in real life, and this is my socializing channel. So for her it was never about getting gigs and all that stuff, but she told me that all these came with a cost, and that cost was anxiety. And यहीं से मैं समझ गया था what was the issue, because WhatsApp is your personal space भाई. WhatsApp के ऊपर if you are texting, that is your personal space. You only can text on WhatsApp when you have someone's number. और वहाँ पे when you see that there are so many groups, so many green dots, so many messages, तो वहाँ पे it is bound to mentally f you up. And that exactly what happens. And that's the reason, like I don't understand WhatsApp communities का purpose क्या है. You go, you share out your problem. अब इतने लोग हैं ना फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है दैट किसी के पास टाइम नहीं है भाई तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने का. एवरीवन इज आउट देयर थिंकिंग कि मैं कैसे ज़्यादा पैसा बना सकूँ, ये जो इसने हायरिंग पोस्ट डाली है इसके ऊपर मैं किस तरह से इसको क्लोज कर सकूँ. इट इज़ मोर अबाउट कॉम्पिटिशन नाउ. अच्छी कम्युनिटीज़ एक दो ही रह गई है, वो भी मैंने अपने यार दोस्तों से सुनी और उनको मैं यहाँ प्रमोट करने वाला हूँ नहीं काम में. तो वो तुम्हारी हेडेक है, तुम्हें कैसे रखनी है नहीं रखनी. आई एम जस्ट टेलिंग यू माई पर्सपेक्टिव दैट आई नेवर जॉइंड एनी कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी की ज़रूरत ही नहीं है. देर आर 2 रूट्स दैट यू कैन टेक इनटू फ्रीलांसिंग. एक है कि जिसमें तुम मासेस के बीच में जा रहे हो, तुम मासेस को ऑब्जर्व कर रहे हो और मासेस की तरह रिएक्ट कर रहे हो. एक है कि तुम बाहर से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हो कि मासेस कर क्या रही है एंड यू आर डूइंग एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट द मासेस इज डूइंग. तो अगर मासेस टेम्पलेटेड आउटरीच कर रही है देन यू आर गोना आउटरीच पर्सनलाइज्ड. मासेस अगर किसी चीज़ से डर रही है, AI से डर रहे हैं, you are gonna go out there and you are gonna make yourself familiar with AI. masses अगर blame game खेल रहे हैं, तुम आके accountability लोगे अपने actions की, और जो actions तुम्हारे justified है वो justified है, जो नहीं है उस पर you are gonna work. masses अगर client को bad mouth कर रही है, you are gonna see कि client ने वाकई में तो कोई ढंग का point नहीं बोला कि मेरी तरफ से कोई गलती थी. you are gonna be different than the masses and I call it the rebel route. and I took the rebel route because मेरे को वो चीज़ें नहीं करनी that everyone else is doing. And that's why I am a little bit built different. I'm not a very वैसे तो little bit तो नहीं, I'm very much built different because everything I do, everything I say, everything on this channel is particularly very different from what you are used to here. And that's the reason I started this channel. और अच्छी बात है अभी तक हम कम लोग हैं, that is nice. सुकून भरा हिसाब किताब चल रहा है. So that's the thing कि communities में किसी का फ़ायदा नहीं होता except for the fact जिसने community बनाई है. Community बनाने से better पता है क्या है? You try out. देख कोई भी चीज़ है फ्रीलांसिंग के अंदर, आई एडमिट द फील्ड इज़ अनसर्टेन, पे इज़ अनसर्टेन, फ्रेंड्स ज़्यादा यू कैन नॉट मेक, एक्विंटेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं बट पीपल यू कैन रियली कॉल फ्रेंड्स वो नहीं होते ज़्यादा. आई गेट दैट पार्ट, बट द नंबर 1 स्टेप टू एड्रेस समथिंग दैट यू हैव नो आइडिया अबाउट इज़ यू लर्न एंड रीड अबाउट इट. तो यू लर्न एंड रीड, यू गेट दैट नॉलेज. नॉलेज लेने के बाद यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट नॉलेज. ठीक है, नॉलेज के बाद इट कम्स एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन कर लिया, नाउ इट कम्स अबाउट कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंट भी रह गए तो नाउ यू नीड टू ट्रैक दैट कंसिस्टेंसी कि क्या क्या फ्लॉज आ रहे हैं. ट्रैक करा, फ्लॉज मिले, फ्लॉज में देखो क्या क्या चीज़ें ठीक हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है. वो फ्लॉज को ठीक कर लिया, नाउ ट्रैक वंस अगेन कि व्हाट ऑल कुड हैव हैपेंड, व्हाट ऑल कुड हैव बीन अवॉइडेड. एंड दिस इज द साइकिल दैट यू नीड टू, दिस इज लिटरली इट. अगर फ्रीलांसिंग में यू वांट टू मेक इट, दिस इज ऑल यू नीड टू डू. जो मैंने अभी बताया, फ्रॉम रीडिंग एंड लर्निंग
टिल द ट्रैकिंग पार्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है इंडस्ट्री के अंदर. And this is coming from somebody who has seen 20,000 a month, who has seen 2 lakhs a month, 3 lakhs a month, and even beyond that. Not gonna go exactly into my finances because that is none of your business. Your finances are your business, and my business is to make sure that your business grows so that your finances grow. All right? And here is the thing. अब you take me for example. मैं किसी community में नहीं गया. I still have got people that I can meet in real life. Even we have meetups in Delhi twice a month. We meet, we hang out in real life, we go to do activities. Maybe it's bowling, maybe it's watching a movie, maybe it's going out on a drive, maybe it's just meeting, playing badminton, going swimming. Like all things that friends do, we do it. I didn't met them through any WhatsApp community or WhatsApp group. Yet I somehow, a person like me, and I handpick people in my circle because I am a reflection of the people I'm hanging out with. The people who are hanging out with me are a reflection of me. They are my extended personality. I hate losers. So if you have to be my friend, you have to go through a lot of parameters. And then once you are out through those parameters, you then still need to keep proving your worth. You need to keep upscaling, doing better in your life. If you are my friend, you cannot stay stagnant for a month or a year. Because like for a month you can if something really bad happens. But for a year, no, it can't be the case. Because in a year, if you are not upscaling and I am upscaling, the only thing that is going on is that I would be a little bit far ahead and you would be catching up, and then we will just be on different wavelengths. My friends are on my wavelength. They are all people who have built out their businesses from scratch without anyone's guidance. We are figuring out as we go. We are not trying to be perfect. We are showing up every day, no matter how good or bad the day is going. We work hard, we make money, we push each other to do better, and literally that is it you need in your friend circle. You don't want to hang out with somebody who is discussing कि Big Boss में वहाँ क्या हुआ, रोडीज में उसने उसको ये कर दिया, इस सेलिब्रिटी का ये हो गया, उसने उसकी पोस्ट लाइक कर दी और उस पोस्ट लाइक. दिस इज नॉट गोना कन्वर्ट एनीवेयर. और ये चीज़ें ना एक टाइम पे अच्छी लगती है. कॉलेज लाइफ तक ऐसा नहीं है. दिस वॉजंट मी, दिस वॉज मी ड्यूरिंग माई कॉलेज लाइफ एज वेल. थोड़ा बहुत होता है. देयर इज एन एज फैक्टर टू थिंग्स एंड देन यू गेट मैच्योर विद एज. And as time passes and as you stay more in the business, these things, they start making more sense to you. So जो चीज़ें मैंने 3 साल पहले कही थी, हो सकता है उनमें से कई चीज़ों के ऊपर today my belief has changed because I grew as a person, and that is the same with you. But you cannot hang out with people जिनके पास कोई clarity नहीं है. Because 4 लोगों के पास clarity नहीं है और तू उन चारों के साथ hang out करेगा, you would be the 5th one जिसके पास clarity नहीं है. अब मेरे साथ जितने बंदे भी associated है, if they are doing well, I am bound to do well. Because they are my friends. If they can do it, being on my level, having the same brain, same mental wavelength, same frequencies, why can't I? If I grow, because these guys, they know my ins and out. I know their ins and out. We know our revenues and all that kind of stuff. We know what we are doing, what we are not doing. So we have shared all those things, and that is how your circle should be. So communities बनाने से ये चीज़ें नहीं बनती. Communities में people are, यार वहाँ सब अपने मतलब के लिए है. And in real life भी it is like that only, that people are here for all their own purposes, own reasons and their own benefits. But you need 1 or 2 real people. और वो ढूंढना बहुत आसान है. You go to LinkedIn, you start consuming. देख जो पोस्ट करता है ना आदमी, most of the times personality match हो जाती है. अगर तुम उसके पोस्ट से रिलेट कर रहे हो, you can relate to like 6 out of 10 things that guy is saying. तो वहाँ पे it is that कि ठीक है, you can associate, you can initiate a convo, you can do that, but देख जाना तो पड़ेगा. It is not that वो कहने की बात होती है कि ठीक है, if you are on the right path, you are doing everything right, then universe will send this or that. But universe भी तभी देगा ना जब तू कुछ कर रहा होगा. तो right path पे चल तो ले पहले. And रीच आउट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. अब लोगों को हवा लगता है लिंक्डइन पे रीच आउट का. क्या है रीच आउट करना? यू आर एक चीज़ बता मेरे को. Until unless you are professional, you are not crossing any boundaries, you are not threatening the other person, you are not being a stalker or a creep, you are just genuinely going out there as one human to another human to initiate a conversation, there is a very slight chance, there is negligible zero chance that you can go wrong. Now if somebody, if for example some male or female sitting in another part of India who is influenced by my content DMs me, what am I gonna do? Like the first thing, people take it to the extreme that, oh my god, what if they post a screenshot and do that? Bhai, not many people are like that. I told you na,
दैट्स वाई अगर यू आर प्रोफेशनल, यू आर नॉट क्रॉसिंग बाउंड्रीज एंड एवरीथिंग यू हैव सेड इज अंडर अ वेरी कर्टियस मैनर, अगर उसको कोई स्क्रीनशॉट डाल भी देगा तो पीपल विल कॉल आउट। लिंक्डइन के ऊपर हज़ारों चीज़ें ऐसी डलती है जहाँ पे द गर्ल्स जस्ट पोस्ट इट आउट, बस कि ऐसे ही इसने डीएम कर दिया और मैंने डाल दिया, तो उसमें भी पीपल कॉल आउट इन द कमेंट सेक्शन दैट ही डिडंट डिड एनीथिंग रॉन्ग, ही जस्ट रीच आउट टू यू, इट्स यू। And that percentage is very handful. 90-95% of the people, they are good, they are professionals, they know how things work, and that is what you need. तुम्हें बाकी 2-4-5% के डर से अगर ऐसा है तो ऐसे तो रोड पे भी मत चला करो। 100 पेडिस्ट्रियंस में से 1-2 की तो मौत हो ही जाती है, चलना ही छोड़ दो, ये कोई रीज़न थोड़ी होता है। दैट इज़ द थिंग। कम्युनिटीज़ ज्वाइन करना तुम्हारे टाइम की वेस्टेज है। वहाँ पे या तो ग्रुपिंग होगी या वहाँ पे फालतू ड्रामे होंगे जिसका तुम्हारे रियल लाइफ से कोई लेना देना है नहीं। और इस वीडियो को वन टेक में लेने का पर्पज़ ही यही था, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू स्पीक आउट व्हाट आई हैड इन माय माइंड। आमतौर पर मैं स्क्रिप्ट्स वगैरह लेके बैठता नहीं हूँ वैसे भी, बट 1-2 जंप कट्स आते हैं, 1-2 तो नहीं, मेरी वीडियोस में 5-6 जंप कट्स आ ही जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में सेव इट फॉर सम अदर डे, उसको रहने देते हैं। तो कम्युनिटीज़ की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड 1 or 2 रिलायबल पीपल हु कैन बी विद यू इन योर बिजनेस, हु कैन स्टैंड बाय यू एंड whom you can stand out to। क्योंकि देख फ्रेंडशिप में भी कहते हैं कि फ्रेंडशिप इज़ वेरी सेक्रेड, फ्रेंडशिप का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, यू जस्ट हैव टू बी द सेफ स्पेस एंड ऑल दैट। भाई चीज़ें एक टाइम तक सेंस बनाती हैं, थोड़े टाइम बाद जब तुम्हारे पास 3 लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं ना और चौथा आदमी कुछ नहीं कर रहा, तो तुम चौथे आदमी को तवज्जो देना तुम भी कमी कर दोगे। इंसान पैसे के साथ और टाइम के साथ ग्रो करता है, और ये चीज़ तुम्हें जॉब वाले नहीं बताएंगे, जॉब वालों को नहीं पता ये चीज़। दिस कम्स ओनली फ्रॉम बिजनेस। एक सर्विस बेस्ड प्रोवाइडर या एक बिजनेस प्रोवाइडर जिसकी एक महीने में तो 1 लाख आ रहा है, अगले महीने में उसके 4 लाख आ गए, अगले महीने में फिर 4 लाख है, उसके बाद फिर 3 लाख है, फिर 2 लाख, 1 लाख, जिसकी इनकम जितनी बढ़ती जा रही है उतना ही वो नए नए लोगों से मिलते जा रहा है, और उसका माइंड अलग तरीके से शेप होता जाएगा। कॉर्पोरेट में नहीं है कि तुम वही 80,000 की सैलरी पे चले गए, 10 साल तक 80,000 की सैलरी पे प्रोमो लगा के तुम 1.25 पे पहुंच गए। तुम्हारा सर्कल उतना नहीं बढ़ रहा जितना उस आदमी का बढ़ रहा है जो सीधा 1 लाख से 4 लाख चले गया। उसको कोई 3 लाख रुपए देने वाला क्लाइंट मिला, 3 लाख वाले क्लाइंट की बुद्धि अलग है, 3 लाख वाले क्लाइंट का पूरा नजरिया अलग है। वो आदमी हैंग आउट कर रहा है उस आदमी के साथ जिसका बिजनेस ही महीने में 10-15 लाख रुपए कर रहा है, जो 3 लाख रुपए तो उसको सैलरी दे रहा है। उसके साथ जब वो हैंग आउट करेगा, हिज ब्रेन इज गोना बी डिफरेंट। और यही चीज़ें तो समझने वाली है कि जब तुम्हारा सर्कल चेंज होता रहता है ना, उसके बाद फिल्टर आउट करना तुम्हारी एक पर्सनैलिटी बन जाएगी, क्योंकि तुम फिर ऐरे गहरे को टाइम नहीं दे सकते। अब मेरे को कोई न्यू भी मिल जाए जिसको कुछ नहीं पता, मैं उसको एक बार ही बता दूंगा ये कर ले, दूसरी बार आउट ऑफ रिस्पेक्ट या लव या कुछ भी जो मेरे को लगेगा उस पर्सन के प्रति, यार ठीक है भाई 3 बार अगर मैं कोई चीज़ किसी को फ्री में बता रहा हूँ, वो इसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, कोई फायदा नहीं है फिर उसको बताने का, वो फिर कट ही होएगा, सीधी सी बात है। अगर तुम वैल्यू कहीं भी प्रोवाइड, और स्पेशली मेल्स, सर नो वन लव्स यू अनकंडीशनली, यू आर नॉट चिल्ड्रन, यू आर नॉट एनिमल्स, स्पेशली डॉग और कैट्स, एंड यू आर नॉट वुमेन। तुम्हें हर जगह वैल्यू लेकर जाना पड़ेगा। तुम कहीं वैल्यू नहीं दे पा रहे, तुम क्या सोच रहे हो तुम्हें कंफर्ट स्पेस दे देगा कोई बिना बात? जब तुम्हारा कंफर्ट स्पेस भी आएगा ना, वो भी यही देख के आएगा कि तुम वैल्यू कितनी लेके आ रहे हो टेबल के ऊपर। फॉर मेंस द फ्रीलांसिंग गेम इज डिफरेंट, द बिजनेस गेम इज डिफरेंट। फॉर फीमेल्स द गेम इज डिफरेंट। फीमेल्स को अगर दे आर नॉट डूइंग दैट फाइनेंशियली वेल, 40-30 हज़ार में भी शी वुड बी वेल ऑफ, शी वुड बी वेल ऑफ, क्योंकि वहां अलग भाई। पहली बात तो बेसलाइन कंपैरिजन ही गलत है मेल फीमेल का प्रोफेशनल स्पेस के अंदर। फीमेल्स हैव देयर ओन ट्रेड्स, मेल्स हैव देयर ओन ट्रेड्स। अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस मेल्स का दिमाग अलग काम करता है, फीमेल्स का अलग करता है। इन इमोशनली वल्नरेबल सिचुएशन, जैसे कोई एस्केलेशन हो रहा है या कहीं पे इमोशंस आर इन्वॉल्व, वहां पे मेल्स को तो पता ही नहीं इमोशंस हैंडल कैसे करते हैं अपना, तो अब जी नंब वाला बटन दबा दिया है, काम कर रहे हैं। हमारा तो यही है, वुमेन दे आर एक्सप्रेसिव, दे टॉक, मेल्स वुड बी लाइक इधर है सब, जो इधर है बस बहुत है, कर लेंगे अपने आप, देख लेंगे। सो दैट बेसलाइन कंपैरिजन इज रॉन्ग। एंड इफ यू आर अ मेल तो भाई वर्ल्ड इज तो तुम्हें पता ही अपने लिए कैसा है, तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। फीमेल्स दे आर ऑलरेडी वेरी स्मार्ट, दे आर स्मार्ट क्रीचर्स, तो उनको भी समझाने की जरूरत नहीं है। समझाने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि कम्युनिटीज़ में टाइम बर्बाद नहीं करना। वो मैंने इस वन टेक में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है कि तुम्हें क्यों उसकी ज़रूरत नहीं है। कम्युनिटीज़ आर अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। और भाई प्लीज़ रन क्लब से दूर रहे।